Well, students, my name is Ms. Said Sumita. I work for Durga and PK classes as a science teacher. And today let's begin with the topic of chemistry that's called as periodic classification of elements. I think you must have studied about chemicals in your previous classes, but at that time we have directly been introduced with topics like what are metals, what are non-metals, plus something like acids, bases, neutralization. So there are topics which we have actually gone in much greater detail. But what was the initial history? What was actually the way in which elements were classified? We still don't know anything about it. So in our 10th standard, we'll be coming across a topic that's called as classification of elements, where we'll be taught how elements were classified and how did scientists go about it. So the lesson that we are actually dealing with today is the classification of elements, since it was being done in a proper systematic manner using a tabular form. So the correct way to give it is periodic classification of elements. Now if you go to see, especially when we are at home, when we enter into the kitchen, you might have noticed that our mom has actually placed n number of things in the kitchen. Like there will be some spices, there will be some cereals, there will be some pulses. बहुत सारी चीज़ें किचन में रखी जाती है, लेकिन उनको रखने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है. जैसे जब तुम्हारी मॉम या घर में के कोई सदस्य जो स्पेशली खाना पकाना चाहते हैं, वो जब अंदर जाते हैं, उनको सारी चीज़ें एक पर्टिकुलर जगह पे मिलेगी. ऐसा नहीं कि मसाले आज यहाँ पे है तो कल कहीं और मिलेंगे. So your mom has actually kept everything in a proper systematic manner, so that even when a person just come inside, just opens a cabinet, yeah, one particular rack is only for the dals, one particular rack is only for the cereals, the other one might be specially for the utensils, crockery articles, कहीं तो भी सिर्फ plates रखे गए. So there is a particular way in which the things have been arranged. तो वैसे ही जब चीज़ों को अगर ठीक से हर एक जगह पे अपनी अपनी तरीके से अगर ठीक से लगाया जाता है, तो उनको हम बहुत अच्छे तरीके से ले सकते हैं, फटाफट वो हमें मिल जाएंगे. द वर्क बिकम्स ईजियर. तो यही हमारा काम ईजी करने के लिए साइंटिस्ट ने भी सभी एलिमेंट्स को अपने अपने तरीके से क्या करना स्टार्ट किया, लिटरली ग्रुप करना स्टार्ट किया. इनिशियली उन्होंने ये ग्रुपिंग तो खुद के लिए ही किया था, बिकॉज साइंटिस्ट आर पीपल हु आर एक्चुअली रिसर्चर्स, जो बार बार कोई ना कोई क्या कैरी आउट करते थे, एक्सपेरिमेंट्स. और उन एक्सपेरिमेंट्स में वो हमेशा किसका इस्तेमाल किया करते थे, केमिकल्स. सो इफ़ यू गो टू सी राइट नाउ, देयर आर अबाउट n नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट हैव बीन डिस्कवर्ड. लेकिन इनिशियली इससे थोड़े से कम एलिमेंट्स ही क्यों ना, लेकिन लगभग राउंड अबाउट 94 एलिमेंट्स के करीब तो भी तभी ढूंढे गए थे. सो देयर वर सो मेनी एलिमेंट्स कि हर एक एलिमेंट के बारे में अलग अलग तरीके से याद रखना वॉज नॉट दैट ईजी. सो साइंटिस्ट स्टार्टेड फाइंडिंग वेज. लोगों ने तरीके ढूंढना स्टार्ट किया कि कैसे हम एलिमेंट्स को क्लासीफाई करेंगे, कैसे ग्रुप करेंगे. तो सब ने अपने अपने तरीके यहाँ पे पुट फोर्थ करना स्टार्ट किए. इनमें से द बेस्ट वंस विच वर एक्चुअली हैविंग सम यूनिकनेस, मतलब कुछ हटके जिन्होंने बताया, उनके बारे में इस लेसन में इंक्लूड किया गया है सिलेबस में. थे बहुत सारे साइंटिस्ट, बट आउट ऑफ देम 3 साइंटिस्ट जिनका काम सबसे रिमार्केबल था, उनके बारे में हम लेसन में स्टार्ट करें. द फर्स्ट वन दैट वी हेड ऑन विथ इज, सबसे पहला मेथड जो क्लासिफिकेशन का दिया था वॉज बीन गिवन बाय अ साइंटिस्ट जिनका नाम था डॉबरआइनर. He is a person who actually was carrying out experiments to look whether the elements were having similar chemical properties or not. मतलब शुरुआत में जब ये experiments कर रहे थे, तो ये अलग अलग elements के properties ढूंढा करते थे. तो properties ढूंढते ढूंढते उन्हें बहुत सारे ऐसे elements मिल गए जिनके properties similar थे. So what did he do is that he started grouping elements. इन्होंने सबसे पहले elements को groups में डाला. वो भी कितने के groups में डाला, 3. And he called it as triads. तो सबसे पहले द वर्क दैट ही डज वॉज, डॉबरआइनर मेड ट्राइड्स. अब ट्राइड्स क्या होता है, ट्राइड्स एक्चुअल में क्या है, ट्राइड्स का मतलब होता है एलिमेंट्स विथ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज. क्या थे ये ट्राइड्स? ट्राइड्स मतलब एलिमेंट्स. वो भी कितने एलिमेंट्स, 3. उन्होंने 3 एलिमेंट्स, उन्होंने लिटरली 3 एलिमेंट्स लिए. है बहुत सारे एलिमेंट्स, लेकिन उनमें से सिलेक्ट कितने किए उन्होंने, 3 एलिमेंट्स. ऐसे 3 एलिमेंट्स जिनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या थे, सिमिलर. सिमिलर मतलब थोड़ा डिफरेंस हो सकता है,
लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं. सो ही टुक three elements. How many elements were taken? 3 elements. 3 elements with similar chemical properties, and he arranged them in an increasing order of their atomic masses. उनके atomic masses के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन्होंने सबको अरेंज करना स्टार्ट किया. तो सबसे पहली बात जो डॉमरेना नाम के साइंटिस्ट ने किया था, उन्होंने 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया. द नेम ऑफ द 3 एलिमेंट्स कैन बी एनीथिंग, मतलब कोई भी रैंडमली एलिमेंट्स उन्होंने सिलेक्ट किए. ऐसे नहीं कि पर्टिकुलर एलिमेंट्स कोई उठाया, लेकिन उठाते समय ऐसे एलिमेंट्स लिए जिनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या रहने चाहिए? सिमिलर. सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैव टू बी सिमिलर. उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए? सिमिलर. प्लस अरेंज करते समय किस ऑर्डर में उनको अरेंज करना ज़रूरी है? इंक्रीजिंग ऑर्डर. ऐसे ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स को उन्होंने नाम दिया ट्राइड्स. सो द फर्स्ट थिंग दैट ही डिड, मतलब अभी ग्रुपिंग का सबका अपना अपना जैसे तरीका था, तो इन्होंने कौन सा तरीका अपनाया? ही लिटरली टुक 3 एलिमेंट्स. थे बहुत सारे एलिमेंट्स जिनके प्रॉपर्टीज सिमिलर थे, लेकिन उनमें से उठाते समय कितने उन्होंने उठाए? 3. कोई भी 3 एलिमेंट्स केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर थे, वो भी अरेंज कैसे किए गए थे? Increasing order of the atomic masses. So look at it. He made group of 3 elements with similar chemical properties, and that too they were arranged in an increasing order of the atomic masses. Such a group, ऐसे ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? ट्राइड्स. अब इस ट्राइड्स में उन्होंने एक बात नोटिस की कि ट्राइड्स में जो मिडिल एलिमेंट था, जो ये मिडिल एलिमेंट था, उस मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास, जो मिडिल एलिमेंट था उसका एटॉमिक मास अप्रॉक्सीमेटली मतलब लगभग, कभी कभी एग्जैक्ट भी था और कभी कभी लगभग भी था. ये मिडिल एलिमेंट का जो मास था, जो उसका वजन था, वो अप्रॉक्सीमेटली बाकी की दोनों के अरिथमेटिक मीन के बराबर था. द मिडिल एलिमेंट्स मास was approximately equal to the arithmetic mean of masses of the other 2 elements. That is what, बाकी के दोनों जो एलिमेंट्स थे, फर्स्ट एंड लास्ट वाला जो एलिमेंट था ग्रुप तीनों का. लिए कितने एलिमेंट्स थे? 3. तीनों के केमिकल प्रॉपर्टीज थे सिमिलर, और वो भी अरेंज करते समय कैसे अरेंज किया गया था? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस. तो उन्होंने ये नोटिस किया कि मिडिल वाले का जो मास था, इट वाज अप्रॉक्सीमेटली मतलब लगभग इक्वल टू द अरिथमेटिक मासेस. इन दोनों के जो मासेस थे उनका क्या लिया था? अरिथमेटिक मीन. तो उनके अरिथमेटिक मीन के बराबर था. सो राइट नाउ द एग्जाम्पल दैट ही टुक, जो उन्होंने एग्जाम्पल्स ढूंढे थे, उन्होंने लगभग 4 ऐसे ग्रुप्स ढूंढे थे. लेकिन अभी उसमें से सबसे पहले वाला ग्रुप जो एग्जाम्पल बोल के हम ले रहे, इट इज़ लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम. जिसमें सबसे पहले वाला लिथियम जो था, इसका एटॉमिक मास 6.9. सेकेंड वाला जिसका नाम था सोडियम, इट्स एटॉमिक मास वाज 23. एंड पोटेशियम, इसका एटॉमिक मास था 39. ना इफ़ यू वांट कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए इसको हम राउंड अप करके 7 ले लेते हैं. इसको अगर हमने 7 ले लिया तो इन दोनों का जो अरिथमेटिक मीन रहेगा, दैट इज़ पहले इनके मासेस को ऐड करके डिवाइड करते हैं हम 2 से. जब हम बोलते हैं अरिथमेटिक मीन, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद इनका जो अरिथमेटिक मीन लिया था फर्स्ट और लास्ट वाले का, वो अरिथमेटिक मीन मतलब नंबर्स का एवरेज लिया गया था. तो व्हाट इज़ दैट एवरेज और दैट मीन? ये नंबर प्लस ये नंबर हम पहले क्या करेंगे? ऐड. सो लेट्स राउंड इट अप टू 7. तो 7 प्लस 39, दैट गिव्स मी 46. और 2 नंबर्स है इसलिए हम उसे किससे डिवाइड कर रहे हैं? 2. सिंस इन दोनों ही नंबर्स का मीन लेना है, जब भी अभी मीन एवरेज लिया जाता है तो जितने भी नंबर्स रहते उस टोटल को उतने नंबर ऑफ इंडिविजुअल से क्या किया जाएगा? डिवाइड. फॉर इंस्टेंस इफ देर आर अबाउट 4 नंबर्स, तो चारों के चारों नंबर्स ऐड अप करने के बाद जो भी इनका टोटल आएगा उसे किससे डिवाइड करेंगे? 4. अगर हमें 10 नंबर्स का मीन लेना है तो जितने भी नंबर्स ऐड अप किए जाते डिवाइडेड बाय 10.
सिमिलरली यहाँ पे कितने एलिमेंट्स के मासेस हमने लिए? 2. सो वी आर डिवाइडिंग इट बाय 2. एंड अमेजिंग बात उन्होंने ये देखी कि इसका जो मीन आया था दैट वाज इक्वल टू द मास ऑफ विच एलिमेंट? मिडिल एलिमेंट. तो हैव अ लुक एट इट वंस अगेन. एक्चुअली ये कुछ बहुत ही अमेजिंग था, समथिंग मिराक्युलस, बट ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू आइडेंटिफाई दिस. लाइक अब तक बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत तरीके ढूंढे थे, बट दिस वॉज समथिंग डिफरेंट. सबसे पहली बात, एलिमेंट्स को उन्होंने कितनों के ग्रुप में लिया था? ही टुक देम इन ग्रुप ऑफ 3, जिनका एक स्पेशल नाम उन्होंने रखा, दैट वॉज कॉल्ड एज ट्राइड्स. ट्राइड्स, नॉट ट्रेट्स, द वर्ड इज ट्राइड्स. तो ट्राइड्स क्या थे? दे वर ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स with similar chemical properties. And how were they arranged? In an increasing order of the atomic masses. थे 3 elements, similar chemical properties, और साथ में कैसे अरेंज किए गए थे? In an increasing order of the atomic masses. अब जब ऐसे अरेंज किए गए थे, what was the unique thing? क्या थी वो हटके बात जो उन्होंने नोटिस की थी? ये उन्होंने नोटिस किया कि मिडिल वाले एलिमेंट का जो मास था, इट वॉज अप्रॉक्सीमेटली, मतलब कभी कभी तो सेम था या कभी कभी लगभग आसपास का नंबर आ रहा था. इट वॉज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द एरिथमेटिक मीन. मतलब बाकी के दोनों जो है उनके मासेस का क्या लिया था? मीन, एवरेज लिया था. तो एवरेज जो इन दोनों का था वो बराबर मिडिल वाले के साथ क्या हो रहा था? मैच. ये हटके बात जिन्होंने सबसे पहले ढूंढी थी, ही वॉज डॉबरेनर. सो द लॉ इज कॉल्ड एज डॉबराइनर्स लॉ of triads. Now why the word triads is already been understood, because उन्होंने लेते समय एलिमेंट्स को कितने के ग्रुप में लिया था? 3. So this triads is the word being associated with his law. Who is the person who's actually discovered elements with respect to their classification where grouping of 3 are done together? It's Dauberner. थे बहुत सारे एलिमेंट्स, उनको अलग अलग तरीके से बहुतों ने ग्रुपिंग भी किया था, लेकिन उनको 3 के ग्रुप में, ये सबसे पहले ट्रायड्स का ये जो कंसेप्ट है वो किन्होंने उठा के लाया था? इट वॉज डॉबराइनर. सो एक्चुअली इन दिस टॉपिक वी आर सीइंग द यूनिकनेस. मतलब हम ये देख रहे हैं कि क्लासीफाई करने का तरीका कितना अलग था. उन्होंने सबसे पहले एलिमेंट्स को 3 के ग्रुप में डाला, प्लस उनके बीच क्या रिलेशन है ये तक बताने वाले वही थे. सिर्फ डाला और छोड़ दिया ऐसा भी नहीं. मिडिल वाले का मास बाकी के दोनों के एरिथमेटिक मीन के मासेस के बराबर था. दिस वॉज समथिंग डिफरेंट जो उन्होंने सबसे पहले ढूंढा. So his rule, his law was uniquely called as Dauberner's law of triads. लेकिन अब ये एक प्रॉब्लम भी थी. ढूंढ तो लिया, कुछ हटके भी था, कुछ अच्छा भी था, लेकिन उस समय पे जितने एलिमेंट्स ढूंढे गए थे, whatever elements were known, around about 56 एलिमेंट्स तभी लोगों को पता थे. लाइक साइंटिस्ट जितने भी थे सब मिला के उन्होंने 56 एलिमेंट्स तभी ढूंढे थे. तो उनमें से ग्रुप्स कितने बन गए? हार्डली जो ग्रुप्स बन गए थे वो लगभग थे, the examples were round about 4 groups. जो उन्होंने एग्जाम्पल्स बनाए वो लगभग 4 ग्रुप्स उनको मिले, जिनमें से one of them is लिथियम, सोडियम, पोटेशियम. ये एक यूनिक एग्जाम्पल है जो हमेशा याद रखा जाता है, बिकॉज इसको बहुत अच्छे से बुक में डिस्क्राइब किया गया है. प्लस याद रखना बहुत ईजी है, बिकॉज द निमोनिक, द वर्ड जो बनता है इससे वो है लिनैक. एंड द नंबर्स ऑल्सो वेरी इजी टू रिमेंबर, क्योंकि जब लॉ आता भी एग्जाम में, लाइक व्हाट इज डॉबरेनर्स लॉ ऑफ ट्रायड या गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डॉबरेनर्स लॉ ऑफ ट्रायड, दोनों में से कुछ भी आया तो एग्जाम्पल तो एक तो देना ही पड़ता है. सो उसमें से दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल वेयर द नंबर्स आर 7, 23 एंड 39, एंड द नेम निमोनिक टू बी रिमेंबर्ड इज लिनैक. इट इज लिनैक. बाकी के भी ईजी है, बट देयर मासेस आर अ बिट डिफिकल्ट. इट्स क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, Cl, Br, I. नेक्स्ट वन इज कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम, जिसे बहुत सारे लोग स्ट्रॉन्शियम भी प्रोनाउंस करते हैं, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है. कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम, एंड द लास्ट वन इज बेरियम. It's also called as Kasarba, but since the masses are a bit, like you can say, difficult to remember, that's the reason why always we stress that पहले वाला याद रखो, because that's been mentioned in our book also. And one more is there, N, P and AS. Now these were the only 4 groups. ये सिर्फ ऐसे 4 ही ग्रुप्स थे जो वो उस समय पे ढूंढ के निकाल सके. जैसे मैंने पहले ही बोला, बहुत सारे एलिमेंट्स नहीं ढूंढे गए थे 56 ही, लेकिन उनमें से भी सिर्फ ग्रुप्स कितने वो बना पाए? ये 4. इससे ज़्यादा ग्रुप्स ही वॉज नॉट एबल टू फाइंड.
मतलब उन्होंने कितना भी अलग अलग तरीके यूज़ किए, ही वॉज ओनली सक्सेसफुल, वो सिर्फ कामयाब हुए ये 4 ही ग्रुप्स बनाने में। तो यहाँ पे ड्रॉबैक हम ये बोल सकते हैं, वी कैन से दैट द ड्रॉबैक वॉज कि ये जो लॉ है इतना अच्छा रहने के बावजूद इट वॉज नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल एलिमेंट्स। हाउ मेनी ऑफ देम वर ओनली पॉसिबल, कितने ग्रुप्स थे 56 में से, सिर्फ 4। हाउ मेनी वर पॉसिबल, ओनली 4। तो अभी वापस एक बार देख रहे हैं हम लोग, एलिमेंट्स को जब क्लासीफाई किया जाता है साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके यूज़ किए, बट सबसे पहला यूनिक और एक ईजी तरीका जिन्होंने पहले पुट फोर्थ किया था ही वॉज डॉबरेनर, जहाँ पे उनके लॉ का नाम है डॉबरेनर्स लॉ ऑफ ट्राइड्स। नाउ व्हेन वी से डॉबरेनर्स लॉ ऑफ ट्राइड्स तो सबसे पहली बात आती है व्हाट इज अ ट्राइड्स, क्या है ये ट्राइड्स, विच इज़ एक्चुअली आज सेपरेटली फॉर 2 मार्क्स ऑल्सो। सो ट्राइड्स क्या रहता है ये मैंने इतना यहाँ तक एक्सप्लेन करके दे दिया है। व्हाट इज दिस ट्राइड, ट्राइड मीन्स ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, ट्राइड्स मीन्स ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। ये 3 एलिमेंट्स आर हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज और उनको अरेंज कैसे किया गया है, इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस। है कितने एलिमेंट्स, सिर्फ 3। इंपॉर्टेंट बात यह है कि तीनों के केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, सिमिलर। 3 एलिमेंट्स है, केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है और अरेंज करते समय उन्हें कैसे अरेंज किया गया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस। अब लॉ स्टार्ट होता है, या यहाँ तक जो बताया वो सिर्फ ट्राइड्स का डेफिनेशन था कि व्हाट आर ट्राइड्स, ट्राइड्स आर ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, ट्राइड्स आर ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स having similar chemical properties and they are arranged in an increasing order of the atomic masses. And now begins the law, like in triads the mass of the middle element, in triads the mass of the middle element is approximately the arithmetic mean of the masses of the other 2 elements. तो बाकी की 2 एलिमेंट्स का जो अरिथमेटिक मास होता है उसके बराबर किसका रहेगा, मास द मिडल एलिमेंट, एग्जैक्टली इक्वल या लगभग थोड़ा सा क्लोज बाय टू इट। एंड फॉर दिस द एग्जाम्पल दैट ही पुट फोर्थ वाज लीनैक, दैट इज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम का मास 6.9 विच वी राउंडेड अप टू 7, सोडियम mass 23, potassium the mass is 39, that is these are the mass numbers actually if you go to see. So here I have just rounded it up to the mass number itself, that is 7. So first and last वाले के masses को जब हम लोग like add up करके उसका mean लेते 7 plus 39 that gives us 46. 46 को 2 से इसलिए डिवाइड किया जा रहा है क्योंकि 2 ही एलिमेंट्स के masses हम ऐड कर रहे हैं। अगर 4, 5, 6 जितनों के भी एड अप करते थे, अगर कुछ और होता था मीन वगैरह लेना तो उसके हिसाब से वो नंबर से हम डिवाइड करते। हियर यू आर टेकिंग द मासेस ऑफ 2 एलिमेंट्स, सो यू डिवाइड दिस एडिशन बाय 2, जिसका आंसर जो है वी आर गेटिंग इट इक्वल टू 23, जो बाय चांस किसके साथ मैच हो रहा है, मिडिल एलिमेंट के मास के साथ। दिस वॉज द लॉ दैट वॉज पुट फोर्थ बाय डॉबरेनर। लेकिन ड्रॉबैक अभी क्या है इसका, 56 एलिमेंट्स के वो ग्रुप में से जितने भी थे एलिमेंट्स उन सब में से इट वॉज ओनली एप्लीकेबल फॉर फ्यू एलिमेंट्स। फ्यू एलिमेंट्स मीन्स विच वंस, it is for LiNAK, LINAC, chlorine, bromine, iodine. Next is Cassava, that is calcium, strontium and barium. Last wala is NPAS. Now if you have a look at all of them, तुम्हें सबके masses भी याद रखने की ज़रूरत नहीं। There is no hard and fast rule that for your boards you have to literally mug up the mass numbers of each and every element. There is no need absolutely, because hardly the law and one example is to be given. So you can remember the easiest one and that will like reduce your burden. You don't have to sit up, continuously read that full page where the topic is being given. Literally in the beginning, round about 1 page, that is the first side, you don't even have to go through it, because from that part basically none of the questions regarding the MCQs are also asked. We directly have to head on from this topic regarding the topic of laws, because when it is classification of elements, actually starting these 4 laws, that is 4 scientists who have given these laws, that is the most important part. And once you are done with it, then you can easily go ahead with each and every line to line like reading part of the lessons. But the beginning of this topic, as I have already started with, it's directly to be taken from the Doberener's law. Now as you have seen the first law, we have already done with it, where elements को 3-3 के ग्रुप में डाला, प्रॉब्लम क्या थी वो भी देखा। तो अभी जब इनका लॉ सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है तो ऑब्वियसली जब इधर कुछ गलती है, कुछ ड्रॉबैक है, तो हमें किसी और के भी लॉ को अभी पढ़ना पड़ेगा। सो द नेक्स्ट लॉ दैट वाज एक्चुअली बीन सीन वाज द अदर साइंटिस्ट जिनका नाम था न्यूलैंड। सो द नेक्स्ट लॉ, so well now we continue further.
with the second scientist. The second law that we are now heading on with is Newland's law of octaves. Now just we saw that how Dauberner grouped elements in a group of three elements. So now this scientist who was there, he actually did not group it as such. He directly kept on arranging elements. He just arranged all elements. But first let's see what is the name of the scientist. The name of the scientist is Newland, and the law that he gave is called as Newland's law of octaves. So now what exactly did this person do? मतलब अभी इन्होंने exactly क्या किया? डॉबरने के तो लॉ में उन्होंने तीन के एलिमेंट्स लिए थे, लेकिन इन्होंने वैसे नहीं किया. इन्होंने जितने भी एलिमेंट्स थे, अब जितने भी थे मतलब लगभग उधर थे 56 एलिमेंट्स. वहाँ पे उस समय पे 56 एलिमेंट्स जाने जाते थे. लाइक लोगों को इनके बारे में सिर्फ पता था कि टोटल 56 ही एलिमेंट्स है. तो आउट ऑफ दिस 56 एलिमेंट्स, द मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन दैट वाज यूज्ड बाय एनीबडी वाज वेयर रैंडमली किसी ने ग्रुप्स बनाए तो किसी ने सबको एक साथ क्लासीफाई किया. तो यहाँ पे न्यूलैंड भी उसी टाइप के साइंटिस्ट थे जिन्होंने ग्रुपिंग नहीं किया, सबको एक साथ अरेंज करना स्टार्ट किया. तो ही अरेंज्ड द एलिमेंट्स. He arranged elements in an increasing order of their atomic masses. मतलब इन्होंने भी एलिमेंट्स को क्या करना स्टार्ट किया? अरेंज, छोटे से बड़े मास वाले तक. तो ऐसे अरेंज करते गए. लगभग ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, 9, 10, 11 वगैरह वगैरह वगैरह. ऐसे अभी आगे जैसे जैसे वो एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे थे, ही कंटिन्यूसली अरेंज. वो भी कितने? वॉट एवर नंबर वॉज नोन, उस समय तक जो 56 एलिमेंट्स ढूंढे गए थे उन्होंने सबको अरेंज किया, लेकिन एक तरीका यूज़ किया. व्हाट इज़ द मेथड? ऐसा नहीं कि बॉक्सेस में डालते गए. ही अरेंज देम, लेकिन इंक्रीजिंग ऑर्डर में. किसके इंक्रीजिंग ऑर्डर? तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस, मतलब वजन के बढ़ते हुए सीक्वेंस में उन्होंने अरेंज किया. तो व्हाट डिड ही नोटिस? जब एलिमेंट्स को उनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है, प्रॉपर्टी ऑफ एवरी फर्स्ट एलिमेंट, हर पहले एलिमेंट का जो केमिकल प्रॉपर्टी था वो लगभग 8th वाले के साथ, 8th एलिमेंट के प्रॉपर्टीज़ के साथ हो रहा था मैच. सो व्हाट ही एग्जैक्टली हैज़ डन इज ही लिटरली अरेंज्ड एलिमेंट्स. एंड हाउ मेनी एलिमेंट्स वर नोन एट दैट टाइम? 56. तो जितने थे सबको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते गए. जैसे अभी पीटी पीरियड के समय जब हमें एक्सरसाइज करने के लिए ग्राउंड के ऊपर खड़ा किया जाता लाइंस में, तो रैंडमली नहीं खड़ा किया जाता था, हाइट वाइज खड़ा करते. तो वैसे इनको भी हाइट वाइज नहीं, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में खड़ा किया गया था. कैसे? उनके मासेस के हिसाब से, छोटे से बड़े तक. तो जब इनको अरेंज किया गया था अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस, क्या अभी इन्होंने नोटिस किया? हर पहला एलिमेंट और हर 8वां एलिमेंट जो है, इनके प्रॉपर्टीज़ क्या हो रहे थे? मैच. दैट मीन्स एवरी फर्स्ट एलिमेंट एंड 8th एलिमेंट, इनके प्रॉपर्टीज़ बाय चांस क्या मैच हो रहे थे? केमिकली वो सेम दिख रहे थे. मैच हो रहे थे मतलब उनके जो फीचर्स थे वो लगभग सेम दिखाई देने. अब सेम दिखाई दे रहे तो मे बी देयर वाज समथिंग फनी अबाउट इट, बट ही रियलाइज दैट वो एक बार नहीं, ऐसे बार बार हो रहा था. जैसे अभी ये फर्स्ट वाला 8th वाले के साथ मैच हो रहा था. नेक्स्ट अगर इसको फर्स्ट कंसिडर किया तो ये इसके साथ मैच हो रहा था. दैट इज सेकेंड वाले के प्रॉपर्टीज 9th वाले के साथ मैच हो रहे थे. सो इफ मैंने इसे फर्स्ट कहा, इफ आई रिगार्ड दिस वन एज द फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 8th, दैट मीन्स वो जो सीक्वेंस थी वो आगे आगे फॉलो होती जा रही थी. एंड ऐसे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, ऐसे 2-3 बार होते गया कि जितने 56 एलिमेंट्स थे उसमें फर्स्ट और 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या हो रहे? मैच. सो उन्होंने डायरेक्टली कंक्लूजन दे दिया. ही केम टू अ कंक्लूजन दैट when elements are arranged in an increasing order of the atomic masses, the properties of every 8th element is similar to the first element. The properties of every 8th element is similar to the first, or you can take it as the properties of every first. अगर इसे 8 नहीं कहना, you can call this as the first,
एंड उसे अगर फर्स्ट कहा तो फिर इसे कहना पड़ेगा 8. मतलब फर्स्ट एंड 8 इनके प्रॉपर्टीज़ क्या हो रहे थे, दे वर मैचिंग, नॉट एग्जैक्टली सेम टू सेम आइडेंटिकल. मैंने वर्ड आइडेंटिकल नहीं यूज़ किया, यूज द वर्ड दे वर सिमिलर टू ईच अदर. सिमिलर मतलब थोड़े बहुत डिफरेंसेस दिखाई दे रहे थे लेकिन सिमिलैरिटी ज़्यादा थी उनमें. सो दिस इज समथिंग यूनिक जो उन्होंने ढूंढा था. सो व्हाट डिड न्यूलैंड डू, जितने एलिमेंट्स थे सबको उन्होंने अरेंज किया. ही अरेंज एलिमेंट्स इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस. ही अरेंज्ड एलिमेंट्स इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस, मतलब छोटे से बड़े तक. अरेंज करते 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 उन्होंने क्या नोटिस किया, हर पहला एलिमेंट और 8वां एलिमेंट, दैट मीन्स एवरी 8th एलिमेंट एंड एवरी फर्स्ट एलिमेंट, इनके प्रॉपर्टीज़ क्या थे, सिमिलर. सो ही देन स्टार्टेड थिंकिंग, दैट मीन्स दिस इज, ये जो बात उन्होंने नोटिस की उन्होंने इसको रिलेट किया म्यूज़िकल नोट्स के साथ. जैसे अभी हमारे इंडियंस में अगर देखने जाओ तो एज पर द म्यूज़िकल नोट्स दैट आर देयर, द डिफरेंट म्यूज़िकल नोट्स आर सा, रे, गा, मा, प, ध, नी. And once again the 8th one is going to be sa. So just think about it. The first and the 8th one, aren't they exactly the same? So he also compared it with the musical notes. अब ये मत सोचना तभी क्या सारे गामा वेस्टर्न कंट्रीज़ पढ़ते थे या वहाँ पे वो फॉलो करते थे, क्या क्या वो सीखते थे क्या इस तरह का म्यूज़िक वगैरह. तो नो, देयर म्यूज़िक वाज ऑब्वियसली वेस्टर्न विद सम वेस्टर्न नोट्स इन इट. एंड वहाँ पे भी जैसे हमारे यहाँ पे अभी ये 7 म्यूज़िकल नोट्स है, सारे गामा पधा, ये जो 7 म्यूज़िकल नोट्स है, वैसे ही वहाँ पे वेस्टर्न म्यूज़िकल नोट्स है जो कि है 7. सो आफ्टर एवरी लाइक फर्स्ट पहले 7 होने के बाद 8वां जो रहेगा और फर्स्ट वाला जो रहेगा वो एग्जैक्टली क्या रहेंगे, सेम. दैट मीन्स देयर ऑल्सो ही गॉट इट दैट सेम. जैसे यहाँ पे ये जो एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़ मैच हो रहे थे, सिमिलैरिटी दिखा रहे थे, इट वॉज जस्ट सेम लाइक द म्यूज़िकल नोट्स, जस्ट सेम लाइक द म्यूज़िकल नोट्स. यू कैन टेक अनदर एग्जाम्पल ऑल्सो. हमारे जो हफ्ते भर के जो डेज़ होते हैं, द डेज़ ऑफ द वीक दैट आर देयर, इफ़ यू बिगिन विद अ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे. नाउ दीज आर द 7 ऑफ देम. ये टोटली 7 है, ये टोटली 7 है. वापस 8th वाला जो रहेगा इट्स अगेन गोइंग टू बी अ मंडे. सो जिससे भी तुम शुरू करोगे 8th वाला फिर से वही रिपीट होता है. सो यू कैन रिमेंबर न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. ऑक्टेव्स मतलब जहाँ पे 8 का ग्रुप, मतलब कुछ तो भी उनको 8 में रिपीट होते हुए दिखाई दिया. दिस यू कैन रिगार्ड इट टू बी सेम लाइक द म्यूजिकल नोट्स, और यू कैन ऑल्सो कंपेयर इट विद द डेज ऑफ द वीक. तो इसे हम किसके साथ कंपेयर करके ले सकते हैं, यू कैन आइदर टेक इट विद द म्यूजिकल नोट्स और यू कैन इवन कंपेयर इट विद द डेज ऑफ द वीक, वेर एवरी फर्स्ट वन इज गोइंग टू हैव सिमिलैरिटी विद द 8th. This is the thing that was being put forth by the scientist called as Newland. So now let's see once again what did he do. He arranged elements. इन्होंने elements को arrange किया. वो भी किस तरीके से arrange किया, increasing order of the atomic masses. और उन्होंने ये देखा कि हर 8वां एलिमेंट पहले वाले के साथ उसके प्रॉपर्टीज़ क्या हो रहे थे, मैच हो रहे थे, बहुत ज़्यादा मैच हो रहे थे. बस कहीं पे थोड़ी बहुत डिफरेंसेस नज़र आ रही थी, लेकिन सिमिलैरिटी फर्स्ट वाला किसके साथ दिखा रहा था, 8th वाले के साथ. इसीलिए उन्होंने लॉ का नाम क्या रखा था, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. Why the word octaves? Because the first one and the 8th one, their properties were getting repeated, they were getting matched, they were showing some similarity. So the word used is octaves. इसलिए यहाँ पे word use किया जाता है octaves. जैसे musical notes के साथ भी उन्होंने उसे compare किया. You can also compare it with the days of the week. So this was the law which was actually easy also, but now again a problem came. This law that is there, you cannot just continuously use it for all 56 elements. यहाँ पे भी कुछ drawbacks थे. So now let's see what are those drawbacks. Okay, so now let's continue further with the limitations. Like as we just saw that the law was easy, the law was good also to be remembered because hardly the first and the 8th element were showing some similarities. But then what was the problem exactly? The problem arose when, same as in case of Dobereiner, लॉ जो था सारे एलिमेंट्स के लिए अप्लाई हो ही नहीं रहा था. इन्होंने कितनी भी कोशिश की फिर भी लॉ सबके लिए अप्लाई नहीं हुआ. तो अभी लिमिटेशंस क्या थे, प्रॉब्लम्स क्या क्या थे. जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें एक तो डीमेरिट्स भी बोला जाता है, साथ में उन्हें बोला जाता है लिमिटेशंस. मतलब कहाँ पे कौन सी कमियाँ रह गई. तो भी यहाँ पे सबसे पहली कमी, फर्स्ट थिंग याद रखो, टोटल नोन एलिमेंट्स थे कितने, 56. द टोटल नोन एलिमेंट्स वर 56. लेकिन इसमें से अभी लॉ
किस किस के लिए अप्लाई हुआ था? द लॉ वॉज ओनली एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम. अब ये कैल्शियम अगर तुम लोग सोच रहे हो 20th एलिमेंट था क्या, जो अब भी जैसे नॉर्मली होता है, तो वैसा नहीं है, क्योंकि उस समय पे ड्यूरिंग दैट टाइम नोबल एलिमेंट्स भी ढूंढे नहीं गए थे. नोबल एलिमेंट्स लाइक हीलियम, नियॉन, एर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये जो नोबल एलिमेंट्स है जिनका लास्ट शेल पूरा भरा हुआ रहता, वैसे वाले एक भी एलिमेंट तभी ढूंढे नहीं गए थे. तो सिंस वो एलिमेंट्स ही नहीं ढूंढे गए थे, तो जस्ट इमेजिन करो वहाँ तो नोबल एलिमेंट्स थे नहीं, तो इसका मतलब कैल्शियम 20 नंबर पे भी नहीं रहेगा, कैल्शियम तो बहुत उसके पहले रहेगा, और कैल्शियम तक के ही एलिमेंट्स के लिए लॉ अप्लाई हो रहा था. द लॉ वॉज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम. एंड थे कितने एलिमेंट्स? 56 में से लगभग कितने, स्टार्टिंग से 15 या 16 तक उतने ही एलिमेंट्स के लिए लॉ एप्लीकेबल था. आगे के एलिमेंट्स के लिए लॉ बिल्कुल भी अप्लाई हो रहा नहीं था. द लॉ वॉजंट एप्लीकेबल for elements after calcium. It was only applicable up to calcium. Plus, since noble gases were discovered later, and these elements were arranged in between, the law was not following the sequence of first and eighth element similarity. That is, अब इसका मीनिंग क्या है? बेसिकली नोबल एलिमेंट्स तो ढूंढे नहीं गए थे, तो जब नोबल एलिमेंट्स ढूंढे ही नहीं गए थे, जैसे जैसे साइंटिस्ट एक एक करके अलग अलग एलिमेंट्स ढूंढने लगे, तो उसमें से नोबल एलिमेंट अगर कोई था, नोबल एलिमेंट्स को जब वो ग्रुप में डाला गया था, फॉर इंस्टेंस अभी यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, दीज आर मैनी 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 एलिमेंट्स, कंटिन्यूसली बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, लगभग 56 एलिमेंट्स हैं. सोचो अगर बीच में ही कोई आ जाता है नोबल गैस, यहाँ पे कहीं या यहाँ पे कहीं तो भी आ जाता है, तो ये सीक्वेंस में से सडनली जो फर्स्ट वाला एलिमेंट रहेगा और जो एट्थ वाला एलिमेंट रहेगा, उसका सीक्वेंस ही टूट जाएगा. रैंडमली ये जो एट्थ है, एट्थ अभी उसके पहले आ जाएगा, उसके बाद तो नहीं आएगा, उसके पहले आएगा, मतलब इन बिटवीन कोई एलिमेंट आने की वजह से इट इज़ हैपनिंग. सो दिस वन इज़ इन बिटवीन, ये अभी बीच में, तो अगर ये कहीं तो भी बीच में, एट्थ वाला एलिमेंट इसको हम गिन नहीं सकते, क्योंकि जो नया आया है वो पहले आ चुका है. ही समवेयर इन बिटवीन, इट्स समवेयर इन बिटवीन. तो ये एट्थ आने की जगह पे हो सकता है एट्थ नंबर पे कोई दूसरा एलिमेंट की गिनती आ जाए. मतलब if this is regarded as the first, the eighth will not be here, it will be somewhere other, किसी और जगह पे रहेगा, कोई और एलिमेंट होगा जिसके प्रॉपर्टीज़ इसके साथ फिर मैच होंगे नहीं. और ये ऐसे एक बार नहीं हुआ, जैसे जैसे कोई नया नया एलिमेंट ढूंढा जाने लगा, नॉट ओनली नोबल गैसेस, जैसे जैसे नए नए एलिमेंट्स आने लगे, एज न्यू एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड, न्यू एलिमेंट्स वर इन्वेंटेड, दे वर बीन मेड इन द लैब, उनको तो ऑब्वियसली मासेस के हिसाब से तो अरेंज किया ही जाएगा. So was the property of the first and the eighth one matching with each other? No. ये प्रॉब्लम अभी आने लगा कि जो अरेंजमेंट थी बीच में आने की वजह से लॉ जो फॉलो किया जा रहा था, जिसके हिसाब से फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट के सिमिलर प्रॉपर्टीज़ का सीक्वेंस फॉलो किया जा रहा था, वो अभी फॉलो हो नहीं रहा था. इट वॉज नॉट बीन फॉलो. एंड अगर हम चाहते भी थे ज़बरदस्ती से कि ये अगर फर्स्ट है, some other element should be the first element, अगर हम चाहते भी थे if this is the first element, some other element should be the first element, then what was being done, exactly what was being done? Now see, 2 or 3 elements were being given the same position. किया ये जाने लगा कि अगर बाई चांस अभी सोचो, ये था फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, मैंने कहा बीच में अगर कोई एलिमेंट आ जाता है, some element comes, then first, second, third, fourth, fifth, now this will be the sixth, this will be the seventh, this will be the eighth. तो ये एट्थ होने की जगह पे इसको अभी एट्थ बोलना पड़ेगा. दैट मीन्स उसका सीक्वेंस क्या हो गया है? चेंज. तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ तो मैच तो नहीं होंगे, एंड अगर ज़बरदस्ती से तुम्हें उसको मैच करना है तो एक ही जगह पे ये जो नया एलिमेंट डाला है उसी जगह पे ऑन दैट सेम स्पॉट how many elements will have to be placed? 2 or 3.
फिफ्थ वाले की जगह पे ये नए एलिमेंट को डालो या नए एलिमेंट को किसकी जगह पे रिप्लेस कर दो, 6। मतलब इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट एट अ न्यू प्लेस आइदर मर्ज इट विथ 6 और मर्ज इट विथ द फिफ्थ या 6 दोनों में से किसी एक की जगह पे उसे क्या करना पड़ेगा, मर्ज, विच वॉज fitting the element at one place. That means to enable the law to be valid, same position had to be given to more than one element. दैट इज़ अगर हम चाहते हैं कि कोई नया एलिमेंट डिस्कवर करने के बावजूद भी सीक्वेंस चेंज नहीं होने चाहिए, तो एक ही जगह पे 2 या 3 नए एलिमेंट्स को डालना पड़ेगा जो पुराने वाले की ही जगह पे फिट करने पड़ेंगे ताकि ये सीक्वेंस में कोई गड़बड़ ना हो। क्योंकि अगर कोई नया एलिमेंट आएगा तो बीच में आ जाएगा तो जो थे वहाँ पे उनको पीछे हटना पड़ेगा, पीछे हटेंगे तो 8th वाले का फर्स्ट वाले के साथ जो जोड़ी थी, जो सीक्वेंस था मैचिंग का, वो तो होने से रहा। दिस वॉज द प्रॉब्लम दैट वॉज फेस्ड एंड न्यूलैंड ये बता नहीं पाए कि ये चेंजेस अभी करने कैसे। मतलब उन्हें ये तो पता था कि फर्स्ट और 8th वाले के प्रॉपर्टीज मैच हो रहे, लेकिन अगर आगे नए नए एलिमेंट्स आते गए तो कैसे प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स के मैच करवाने हैं या व्हाट न्यू सीक्वेंस हैज़ टू बी पुट इन बिटवीन सो दैट अपना लॉ गलत साबित ना हो, ये वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। सो दैट इज़ कॉल्ड एज इज लिमिटेशन। मतलब उनको पूरी तरीके से अपने जो कंसेप्ट थे वो नए एलिमेंट्स आने के बाद अप्लाई करने को जमा नहीं। Since he was not able to apply his same rule for even the new elements when they were entered inside, this was something which he was unable to do, due to which इनके भी लॉ को बाद में फॉलो नहीं किया जाने लगा। बिकॉज नए नए एलिमेंट्स तो आते जाएंगे, जैसे जैसे न्यू साइंटिस्ट आएंगे दे विल डिस्कवर न्यू थिंग। नए एलिमेंट्स एग्जिस्टेंस में आने के बाद उनको भी तो अरेंज करना ही पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है दैट लॉ विल बी ओनली मेड एप्लीकेबल फॉर फ्यू एलिमेंट्स, इट हैज़ टू बी मेड एप्लीकेबल फॉर ऑल एलिमेंट्स। सम स्पेशल लाइक रूल, सम एलिमेंट स्पेशल रूल, ऐसे तो नहीं कर सकते। सिंगल रूल शुड बी एप्लीकेबल फॉर ऑल। दैट्स द रीज़न वाई इनके भी लॉ को धीरे धीरे क्या किया जाने लगा, डिस्कार्ड। दैट इज द रूल वॉज नॉट बीन फॉलोड लेटर ऑन एंड आफ्टर दिस देर वॉज अनदर साइंटिस्ट जिनके रूल को सब लोग लाइक फॉलो करने लगे बिकॉज इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट। जैसे डॉबरेनर अरेंज देम इन ग्रुप ऑफ 3, ही कंटिन्यूसली अरेंज एंड मेक ग्रुप ऑफ 8, बट देर वॉज अ न्यू साइंटिस्ट जिनका नाम था मेंडलीव, जिन्होंने ग्रुपिंग नहीं किया, डायरेक्टली एलिमेंट्स को रैंडमली उठा के टेबल के अंदर डाला। वो भी इंट्रोड्यूस करते समय इनका ही तरीका यूज़ किया ऑफ इंट्रोड्यूसिंग देम अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक मासेस, बट ही डिडंट फॉलो अ सीक्वेंस ऑफ 3, डिडंट फॉलो अ सीक्वेंस ऑफ 8, ही कंटिन्यूसली केप्ट ऑन अरेंजिंग देम इन हिज टेबल। दैट्स व्हाट आई सेड, इंक्रीजिंग ऑर्डर में गए लेकिन रैंडमली डालते गए। ऐसा नहीं कि 3-3 का ही ग्रुप बनाना है, 8-8 का ही ग्रुप बनाना है। जैसे जैसे नया नया एलिमेंट आया, कोई अभी अभी आया है उसको इंट्रोड्यूस कर दिया। मतलब उनके लिए भी उन्होंने बीच बीच में एम्प्टी स्पेसेस रखे थे। सो दिस वाज समथिंग रियली यूनिक इन हिज टेबल। कुछ हटके था, कुछ गलतियां ना हो इस बात का भी उन्होंने ख्याल रखा था। सो आफ्टर दिस वी नाउ हेड ऑन विद द थर्ड लॉ, दैट इज मेंडलीव्स लॉ। Okay, so now after Newland's law, let's take the third law. That is the third law was given by the scientist called as Mendeleev. अब जैसे हमने देखा डॉबरेनर ने 3-3 ग्रुप्स में अरेंज किए एलिमेंट्स को। नॉर्मली न्यूलैंड्स ने जो थे पूरे के पूरे एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, लेकिन ग्रुप कितने के बना दिए अंदर, 8-8, दैट इज फर्स्ट एंड एट। मतलब ऐसे 8-8 का उन्होंने फिर जोड़ियाँ बनानी स्टार्ट की। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट साइंटिस्ट थे, द न्यू साइंटिस्ट जिनका नाम है इवानो द मित्री मेंडलीव, बट मेंडलीव्स लॉ बोल के उन्हें फेमसली लाइक कहा जाता है। सो मेंडलीव्स लॉ जो है इसमें इस साइंटिस्ट ने अभी किया क्या, पूरा का पूरा जो है एक टेबल बना लिया। जितने एलिमेंट्स थे उन सबको फिट करने के लिए एक बड़ा सा टेबल लिया। उस बड़े से टेबल में उन्होंने सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया। वो भी कैसे अरेंज किया, इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस। उन्होंने सारे एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब क्या, छोटे से बड़े तक। तो ये अगर फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, यहाँ तक पूरा ख़त्म होने के बाद फिर से नीचे ये ऐसे अरेंज करते गए जितने भी एलिमेंट्स उस समय पे थे। अब जब न्यूलैंड ने लॉ लाइक फॉर्मुलेट किया था, व्हेन न्यूलैंड हैड गिवन द लॉ, देयर वर अराउंड अबाउट 56 एलिमेंट्स, बट बाय द टाइम दिस साइंटिस्ट वेंट टू क्लासिफाई एलिमेंट्स, देयर वर नॉट 56
देयर वर मेनी मोर एलिमेंट्स, लाइक राउंड अबाउट 63 एलिमेंट्स तब तक ढूंढे गए थे। तो धीरे धीरे साइंटिस्ट जो थे, जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, बहुत सारे साइंटिस्ट अपने अपने तरीके से एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर ही रहे थे। और उसमें से अभी जो अच्छा वाला था, जैसे हमारे सिलेबस में उन्होंने अभी कुछ ही लॉज लिए थे, बहुत सारे साइंटिस्ट सब ने अपने अपने तरीके से अलग अलग तरीके भी बताए थे, जैसे मैंने पहले ही बोल दिया था। बट हियर ओनली दो साइंटिस्ट के व्यूज़ लिए गए विच आर यूनिक, जैसे डॉबरेनर, इट वाज समथिंग डिफरेंट, न्यूलैंड का लॉ समथिंग डिफरेंट, इनका भी ज़रा हटके। तो एग्जैक्टली अभी इस लॉ में भी उन्होंने क्या किया था, पूरे बड़े से टेबल में सारे 63 एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया, प्लस एम्प्टी स्पेसेस रखे, ताकि नए भी अगर कोई एलिमेंट्स मिलते तो भी उन एलिमेंट्स को भी अंदर फिट किया जा सकेगा। सो ऐसे उन्होंने बीच बीच में स्पेसेस भी रखे थे। वो भी अरेंज करते समय कैसे अरेंज किया, इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस। ये जो है दिस इज एन इंक्रीजिंग ऑर्डर। एंड जब उन्होंने सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे अरेंज किया, आफ्टर दैट उन्होंने ये नोटिस किया, एक वर्टिकल कॉलम में आने वाले, मतलब एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक आने वाले एक कॉलम में जितने भी एलिमेंट्स थे, सोचो अभी मैं इस कॉलम को ले रही हूँ, तो इस कॉलम में आने वाले सभी के सभी जो एलिमेंट्स हैं, ऑल द एलिमेंट्स हु आर कमिंग अंडर दिस कॉलम, दे वर हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज। दैट वाज समथिंग रियली वियर्ड, बट यस वैसे ही हो रहा था। फिर उन्होंने नेक्स्ट वाला ग्रुप देखा, इस भी ग्रुप में आने वाले सारे के सारे एलिमेंट्स, दे वर ऑल हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। सो ही नोटिस वन थिंग, जब एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया जाता है, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक मासेस, द एलिमेंट्स वर शोइंग अ रेपिटेशन ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। एलिमेंट्स क्या दिखा रहे थे, प्रॉपर्टीज का रेपिटेशन। जैसे इस ग्रुप में सबके प्रॉपर्टीज सिमिलर, अगर इस ग्रुप को लिया इन सबके प्रॉपर्टीज सिमिलर, 8th ग्रुप को लिया तो इन सबके प्रॉपर्टीज सिमिलर। मतलब एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज जो थे एक कॉलम में बार बार क्या हो रहे थे, रिपीट हो रहे थे। तो इस रिपीट वर्ड के लिए उन्होंने अभी एक यहाँ पे शॉर्ट में कंक्लूजन दिया। सो व्हाट वाज दैट कंक्लूजन, ही सेज दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स के गुण धर्म होते हैं, प्रॉपर्टीज होते हैं, प्रॉपर्टीज मतलब ही गुण धर्म, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मतलब जब हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मासेस के हिसाब से अरेंज करने लगते हैं, तो एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज क्या होने लगते हैं, रिपीट। पीरियोडिक का मतलब होता है वो रिपीट होते हैं। सो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के जो प्रॉपर्टीज है वो रिपीट हो रहे हैं। क्यों रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें किसके हिसाब से अरेंज किया था, उनके एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मासेस के हिसाब से अरेंज करने की वजह से एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हो रहे हैं रिपीट। एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जो है दे आर गेटिंग रिपीटेड। सो दिस रिपीटिशन दैट इज देयर, इट्स जस्ट बिकॉज दे अरेंज अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक मासेस। नाउ डोंट थिंक दैट ये पीरियोडिक क्या रहता, जब कोई चीज़ खुद को बार बार रिपीट करेगी, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, एक पर्टिकुलर जगह के बाद, एक पर्टिकुलर गैप के बाद, जब कोई चीज़ खुद को रिपीट करती है तो उसे हम लोग कहते हैं पीरियोडिक। जैसे अभी देखो, ये पूरा सीक्वेंस खत्म होने के बाद यहाँ पे आने वाला जो नंबर है, या यहाँ पे इस सीक्वेंस में आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो सब के सब जो है ये पूरी एक हॉरिजॉन्टल लाइन खत्म करने के बाद, पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन खत्म करने के बाद फिर यहाँ पे आ रहे हैं। दैट मीन्स आर दे कमिंग आफ्टर अ पर्टिकुलर स्पेस, पर्टिकुलर गैप के बाद आ रहे हैं। सिंस दे कमिंग आफ्टर अ पर्टिकुलर गैप, सो वी यूज द वर्ड कॉल्ड एज पीरियोडिक, इसलिए उसे कहा जाता है पीरियोडिक। फॉर इंस्टेंस इफ यू गो टू सी, जब अलग अलग टाइप के हम मोशंस भी देखते हैं, जैसे हमारे अर्थ का जो रोटेशन है, अर्थ खुद के इर्द गिर्द गोल गोल घूमता है। सो इट्स पीरियड ऑफ रोटेशन, मतलब एक पूरा जो सर्कल है अपने आसपास में, वो कितनी देर में ख़त्म करता है, 24 आवर्स। तो इसका रोटेशन, गोल घूमने का टाइम फिक्स्ड है। जब कुछ करने का टाइम फिक्स्ड है, किसी जगह को ऑक्यूपाई करने के लिए, या पर्टिकुलर जगह के बाद कोई खुद को रिपीट करता है, या पर्टिकुलर टाइम के बाद खुद को रिपीट करता है, तो दैट्स कॉल्ड एज पीरियोडिक। तो वैसे ही एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ खुद को एक पर्टिकुलर गैप के बाद रिपीट करे, पर्टिकुलर गैप के बाद रिपीट करे, इसीलिए उन्होंने वो वर्ड यूज़ किया है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ द एटॉमिक मासेस। प्लस अब इनको जो अरेंज किया गया है, इनके एक स्पेशल नाम भी है। इस पूरी टेबल में अगर देखने जाओ तो ऐसे वर्टिकल कॉलम्स हैं, और वो वर्टिकल कॉलम्स को स्पेशली कुछ नाम दिया गया है। द वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड एज ग्रुप्स। ये जो आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, ये वर्टिकल कॉलम्स जो है, वो वर्टिकल कॉलम्स को स्पेशली कहा जाता है ग्रुप्स। एंड मेनलीव के टेबल में टोटल कितने ग्रुप्स है, तो 8। हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर इन ऑल इन दिस टेबल, 8। प्लस ये जो ऐसे हॉरिजॉन्टल आपको दिखाई दे रहे हैं, जो मैंने ऐसे हॉरिजॉन्टल ब्लू कलर के लाइंस जो ड्रॉ की,
दोज हॉरिजॉन्टल रोज, ये हॉरिजॉन्टल रोज को कहा जाता है पीरियड्स, हॉरिजॉन्टल रोज को कहा जाता है पीरियड्स। और टोटल कितने पीरियड्स है तो 7। वर्टिकल कॉलम्स भी है, हॉरिजॉन्टल रोज भी है। तो यहाँ पे वर्टिकल कॉलम्स और हॉरिजॉन्टल रोज की मदद से जो उन्होंने टैबुलर फॉर्म दिया था, उस टैबुलर फॉर्म मतलब इस टेबल को, दिस टेबल where there are vertical columns and horizontal rows, this table was made by him, so it is called as Mendeley's periodic table. And this blue color sentence that I have written is actually Mendeley's periodic law. So till now just see what we have studied. हमने ये सब देखा कि एलिमेंट्स को क्लासीफाई करना ज़रूरी क्यों था, बिकॉज जैसे मैंने लेक्चर के एकदम स्टार्ट में कहा था, इफ़ चीज़ों को सिस्टमैटिकली उनकी जगह पे रखा जाता है, दे आर ईजिली एक्सेसिबल, दैट इज़ आप जब चाहिए तब उसको वहाँ पे ही पाओगे, आपका काम आसान हो जाएगा, योर वर्क विल बी मोर ईजियर, यू विल बी गेटिंग थिंग्स ईजिली एंड यू कैन कैरी ऑन योर वर्क एट ए फास्टर पेस। वैसे एलिमेंट्स के बारे में अगर सबको प्रॉपरली सिस्टमैटिकली उनके प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से अगर क्लासीफाई किया, जैसे अगर किसी को बता दिया जाता है दीज ऑल मेटल्स, तो ये अगर सारे के सारे मेटल्स है तो इनके प्रॉपर्टीज सबके एक जैसे रहेंगे, ये सारे के सारे नॉन मेटल्स है इनके प्रॉपर्टीज एक जैसे रहेंगे, ये मेटलॉइड्स है इनके सबके प्रॉपर्टीज लगभग एक जैसे रहेंगे। ऐसे अगर सिस्टमैटिकली उन सबको अगर कैटेगराइज किया जाता है छोटे छोटे ग्रुप्स में, तो उनके बारे में याद रखना, उनके बारे में केमिकल रिएक्शंस के समय उनको इस्तेमाल करना, दैट विल बी मोर ईजियर फॉर साइंटिस्ट। दैट वाज द रीज़न वाई अलग अलग साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स को ग्रुप करना स्टार्ट किया था। मानते सबके तरीके अलग थे, सम वर रॉन्ग सम वर राइट, लेकिन जितने भी साइंटिस्ट ने जो जो ट्राई किया था उसमें से यूनिक वाले जो लॉज थे वो यहाँ पे सिलेबस में इंट्रोड्यूस किए गए। एंड वो भी टोटल 4 लॉज है, जिनमें कि स्टार्टिंग के 3 दे हैड सम प्रॉब्लम विद देम, बट दोज 3 लॉज हैव बीन नाउ स्टडीड बाय अस। सबसे पहले वाला जो हमने सिलेबस में देखा वो था डॉबर्डेनस लॉ ऑफ ट्राइड्स, जहाँ पे साइंटिस्ट ने 3 एलिमेंट्स को एक साथ क्लासीफाई किया। प्रॉब्लम ये हुई कि सबके लिए एप्लीकेबल था नहीं, इसलिए हमें नेक्स्ट लॉ देखना पड़ा। द नेक्स्ट लॉ वॉज गिवन बाय न्यूलैंड, जहाँ पे उन्होंने सारे एलिमेंट्स को क्लासीफाई तो किया, एलिमेंट्स को 8 के ग्रुप में भी लिया, जहाँ पे फर्स्ट वाला और 8th वाले के प्रॉपर्टीज़ क्या हो रहे थे, मैच। एंड फिर से प्रॉब्लम ये आई कि जितने एलिमेंट्स थे उन सब के लिए वो अप्लाई हुआ नहीं। तो आफ्टर हिम जो नेक्स्ट वाला लॉ जो अभी के अभी जो हमने जस्ट डील किया है, दैट वाज मेनलीज लॉ, जहाँ पे उन्होंने सारे एलिमेंट्स को एक साथ टैबुलर फॉर्म में क्लासीफाई तो किया। हमने ये भी देखा कि एक कॉलम में आने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनके प्रॉपर्टीज़ क्या हो रहे थे, रिपीट, मैच हो रहे थे। मोर यूनिक थिंग्स हैव बीन एक्सप्लेन बाय हिम। बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं लॉ के बारे में, हमें अब तक इनके मेरिट्स पढ़ने हैं, हमें कुछ कुछ इनसे हुई वो जो गलतियाँ हैं, थोड़े बहुत कहीं तो भी ड्रॉबैक्स भी है, वो तक हमें अभी पढ़ना है। बट हम ये सारी चीज़ें देखेंगे हमारे अगले सेशन में। सो इफ़ यू फील वट एवर वॉज टॉट टू यू ऑल, यू रियली लाइक्ड इट, you have understood it, it was a bit easier for you to understand the way I tried to make it a bit simpler, then please do like, subscribe our channel and please share it with your friends also. Thank you.